Okay, guys. So today we will talk about thread, priority, and sleep. Okay, that will be very easy. Okay, fine. Let's go. So today we what we have and what we have to discuss, which is thread. Okay, about thread. Yeah. So thread, priority, sleep. Okay. थ्रेड के अंदर प्रायोरिटी क्या होता है, स्लीप क्या होता है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. ओके, दैट विल बी वेरी वेरी इजी टू गो एंड टॉक अबाउट गाइस. हाँ, ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं थ्रेड, प्रायोरिटी एंड स्लीप. So thread we have talked about already. We know what is thread, how what is the importance of thread, how we create thread, how we run threads, है ना? So that we understood. How what is the concept of scheduler, है ना? What actually it does, um, and we have talked about like कितने thread at a time run हो सकते हैं, है ना? वो भी हमारा कोर के ऊपर डिपेंड होता है, हमारा कोर प्रोसेसर का कोर कितना है, 2 कोर है, 8 कोर, 6 कोर का है, उसके हिसाब से हमारे थ्रेड से वो डिपेंड होता है. ठीक है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट प्रायोरिटी नाउ. ओके, I will just directly go and tell you what actually we wanted to do here, ताकि आप कोड के जरिए बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे what actually I wanted to do. Let's go. So actually our scheduler it decide, we know that. Okay, our scheduler is decided that which thread will execute, how long it will execute. Okay, that the scheduler is decide, right guys? है कि नहीं, है ना? शेड्यूलर ही हमारा जो है ना, ये चीज़ें क्या करता है, टेक केयर ऑफ करता है कि कौन सा थ्रेड कितना चलेगा, है ना? किसको पहले प्रेफरेंस देना है, किसको बाद में प्रेफरेंस देना है, तो सारी चीज़ें थ्रेड देखता है, नॉट थ्रेड, शेड्यूलर देखता है. ओके, so see what I have here. I will just come back with the same code we have written last time. So here we have a. So a को अगर मुझे थ्रेड बनाना है तो I have extended this a with the thread class, and from thread class we have a run method. Okay, inside a thread class we have a run method. अगर मुझे उसको देखना है, so I will just write something like this here, super dot run, and if I will just click here, you can see we are having a run method here. You can see it, right? Here is the run method we have, right? So this is the method we are calling from here. Okay, let's go back, and where is my thread example? Okay, thread example. Okay, so we are calling that run method because whenever thread runs and whatever we wanted to execute inside that thread, okay, in that particular thread, we will implement that in the run method. So okay, so we are not doing anything fancy, guys. We have written a loop which will run from 1 to 100 to see the difference. क्योंकि मुझे difference दिखना चाहिए कि 1 to, अगर मैं 1 to 10 में चलाऊंगा ना, तो मुझे कोई difference नहीं मिलेगा, बिकॉज 1 मिली सेकंड में भी बहुत सारी लाइन्स प्रिंट हो जाएगी. ओके, फॉर वाइल आई विल टेक दैट असाइड. अगर मुझे डिफरेंस देखना है कि दोनों थ्रेड चल रहे हैं कि नहीं, तो फॉर दैट आई हैव लाइक आई एम हैविंग द लूप फ्रॉम 1 to 100, है ना? और फिर मैंने यहाँ पे आई एम ए प्रिंट किया, आई एम बी प्रिंट किया है. सो देर इज समथिंग कॉल्ड द थ्रेड प्रायोरिटी. सो अगर see now what I have here, I will just remove this thing. Thread is executed, just remove this from here. Now I have a two thread, A1 and B1. So these are two threads I have. Okay, and this is the object obj obj. Okay, so there is something called as a priority. Okay, कि scheduler किसको priority ज़्यादा देगा, है ना? किसको कितनी priority देगा? So we have the concept of priority. Okay, every thread has a priority. Okay, a priority यानी क्या? Suppose I have this obj. Of course, this object is coming from this thread. So A1 is the thread I have created, and I'm creating object to call the start method within this. Okay, because yes, this, if I wanted to access this method, I need object of A. So that's why I have created object of A here, new A, and then I'm calling obj a dot start. So what is this obj dot a? Obj a is a thread. That's why I can call the start method.
क्योंकि अगर एक नॉर्मल क्लास है तो उसके अंदर मुझे स्टार्ट मेथड नहीं मिलता. आई कैन ओनली हैव अ स्टार्ट मेथड इनसाइड अ थ्रेड. ओके, फाइन. नाउ व्हाट इज एक्चुअली द प्रायोरिटी? प्रायोरिटी का मतलब है कि शेड्यूलर किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा कि ये रन होना चाहिए, इतना टाइम तक रन होना चाहिए. तो कौन जो प्रायोरिटी है वो कौन से थ्रेड की कितनी है. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो प्रायोरिटी मींस जो शेड्यूलर है वो कौन से थ्रेड को कितना प्रायोरिटी देगा. दैट इज व्हाट एक्चुअली द प्रायोरिटी मींस. कितना टाइम, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रायोरिटी एक पर्टिकुलर थ्रेड को देता है तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा. ऑफकोर्स उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा कि वो रन हो. तो अगर मुझे किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी देखना है, so what I will write, I will just write system.print because I have already a thread here which is obja.start. इसका भी कुछ प्रायोरिटी होगा. तो अगर मैं लिखता हूँ obja.getPriority, आपको एक फंक्शन मिल जाएगा गेट प्रायोरिटी. यू कैन सी. ओके, एंड इट्स रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू. सो दिस गेट प्रायोरिटी इज अ फंक्शन. अगर इसको देखूं मैं, तो दिस गेट प्रायोरिटी अगेन फंक्शन, इट कम्स फ्रॉम द थ्रेड क्लास. सो इट इज अ थ्रेड क्लास, इट इज कमिंग फ्रॉम द थ्रेड. इट इट्स अ फंक्शन that returns integer value, a priority. Okay, that you can see it is returning the priority. Okay, fine. So what I'm doing here, I'm just trying to get the priority of the thread A. Okay, so obja dot get priority, and get priority will return an integer value. Let's try to run. What is the priority of this A thread? Okay, so let's see. Now what you will get, actually we are getting IMA, but okay, so before that what we are getting, we are getting 5. Okay, actually what we are getting 5 means the priority of the obja, which is a thread, is a 5. Now what is this priority? जब भी हम प्रायोरिटी की बात करते हैं ना, तो प्रायोरिटी का एक रेंज होता है. क्या होता है? रेंज. और प्रायोरिटी हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है? हमारा प्रायोरिटी जाता है 1 से 10 तक. 1 to 10 तक प्रायोरिटी जाता है. ठीक है. 1 का मतलब है लीस्ट प्रायोरिटी, किसको लीस्ट प्रायोरिटी देना है. जो 10 है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है. समझ में आ रहा है गाइस? दैट मच इज क्लियर. ओके. और अगर मेरा 5 है, तो 5 का मतलब क्या है कि इसका नॉर्मल प्रायोरिटी रहेगा. इट विल बी हैव अ मॉडरेट और नॉर्मल प्रायोरिटी. आर यू गेटिंग दिस? इतना समझ आया? ओके. दैट मच इज क्लियर. नॉर्मल बोल सकते Yes. हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं? डिफॉल्ट बोल सकते हैं कि ये डिफॉल्ट प्रायोरिटी है. ठीक है, इट इज हैविंग अ डिफॉल्ट प्रायोरिटी, है ना. तो प्रायोरिटी हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है? 1 to 10 तक जाता है. और बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अभी क्या किया मैंने, व्हाट आई हैव डिड गाइस, आई हैव प्रिंटेड, आई हैव कॉल्ड द गेट प्रायोरिटी फंक्शन. सो दिस गेट प्रायोरिटी फंक्शन, it will gives you the priority of that particular thread. Okay, let's go. I will do the same thing. I will just copy this and I will paste it here, and again I will call to objb priority. Okay. और इसके बाद मैं एक छोटी सी लाइन लिखता हूँ ताकि सेपरेट हो जाए, जो कि मैं लिखने वाला हूँ प्रायोरिटी. सो प्रायोरिटी ऑफ बी. ओके, बी थ्रेड, क्योंकि मुझे एक मैसेज दिखेगा प्रायोरिटी ऑफ बी थ्रेड एंड प्रायोरिटी ऑफ ए थ्रेड. दिस उससे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा. अच्छा, ये ए का प्रायोरिटी है और ये बी का प्रायोरिटी है. दैट आई विल प्रिंट हियर. ओके, सो अगेन आई विल जस्ट राइट हियर, आई विल राइट हियर प्रायोरिटी ऑफ ए. So if I will just run it, of course by default you will get the 5 priority. 5 means default, which is the normal priority you will get. Okay, so now if I will just go up, and you can see something here. So what is the priority of thread? Priority of thread A is 5, but priority of thread B is a 5. Okay, so we have understood that how we can get the priority, how we can see the priority of a particular thread. Yeah, so this is how we can see. There is another thing that you can set the priority. तो यहाँ पे हमने क्या किया? वी हैव यूज्ड गेट प्रायोरिटी फंक्शन टू गेट द प्रायोरिटी. ओके, अगर आपको किसी की भी प्रायोरिटी गेट करना है, देखना है, सो व्हाट इज द फंक्शन विल यूज? वी विल यूज द गेट प्रायोरिटी फंक्शन. ओके, वी विल यूज द गेट प्रायोरिटी. सो दैट फंक्शन विल रिटर्न यू अ इंटीजर वैल्यू. ओके, सो एन इंटीजर वैल्यू विच विल बी द प्रायोरिटी. ठीक है, तो हमने गेट
प्रायोरिटी को गेट कैसे करते हैं, दैट वी हैव सीन. ओके. और देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज अ सेट प्रायोरिटी. ओके. नाउ मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ चीजें बताया था अबाउट द शेड्यूलर. ओके, दैट विल बी बेनिफिशियल हियर टू नो. सेट प्रायोरिटी का मतलब क्या है? इफ आई एम हैविंग अ पर्टिकुलर थ्रेड, ओके, वी कैन सेट द प्रायोरिटी फॉर दैट कि मुझे इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी रखना है, इसको लोएस्ट प्रायोरिटी रखना है. तो ऑफ कोर्स वी हैव एन आइडिया अबाउट कि थ्रेड की रेंज क्या होती है, प्रायोरिटी की रेंज क्या होती है. 1 है वो सबसे लीस्ट हो जाएगा, और 10 है वो हाईएस्ट जो है उसका रेंज प्रायोरिटी हो जाएगा. तो वी कैन सेट अ पर्टिकुलर प्रायोरिटी. तो अगर मैं चाहता हूँ कि दिस थ्रेड ए, okay, so now I will just remove this line. Okay, just keep it for a while. I will just remove, after that I will add it. Okay, now let it be. मैं इसको ऐड ही रखता हूँ ताकि आप इसको देख पाओगे, समझ पाओगे. Okay, so that is here what we have seen, how to get the priority. Okay, another thing is that you can set the priority also. Okay, set. Okay, so you can set the priority as well. Okay, कि कौन से थ्रेड को कितनी प्रायोरिटी मिल. ओके, सो प्रायोरिटी ऑफ टू अ थ्रेड. ओके, ये पर्टिकुलर थ्रेड को अगर आपको प्रायोरिटी सेट करना है, यू कैन ऑल्सो सेट. फॉर दैट यू विल जस्ट डू द सेम थिंग, यू विल राइट obj डॉट सेट प्रायोरिटी. Okay, so another function we have, which is, you can see guys, we have a set priority. And inside this set priority, you can set what are the priority. Suppose you wanted 8, you wanted 9, you wanted 10, you wanted, if you will write 11, that will not work. Okay, so because 1 to 10 तक की priority है, तो we will write 10. So what I am trying to tell, इस लाइन से आपको थोड़ा, मैं आपको इस लाइन को अच्छे से समझाता हूँ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि ये वाला लाइन ठीक है. व्हाट वी आर डूइंग हियर, मैं बोल रहा हूँ कि ओबीजे ए है ना, जो ए थ्रेड है, उसकी प्रायोरिटी सेट करो विच इज 10. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, दैट विल मेक सेंस गाइस. हमें धीरे धीरे समझना है, कोई गड़बड़ नहीं करना, ठीक है. तो सी, दिस इज द लाइन आई हैव एडेड. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. सो मैंने, जब भी हम थ्रेड्स की बात करते हैं, देर इज समथिंग कॉल्ड एज शेड्यूलर दैट विल डील एवरीथिंग अबाउट थ्रेड, है ना, दैट वी हैव सीन. अब जब मैं यहाँ पे सेट प्रायोरिटी बोल रहा हूँ, ओके, वेयर इज माय कर्सर. ओके फाइन. ओके, बैक. ओके फाइन. द टाइम व्हेन आई एम ट्राइंग टू से, ओके, सेट प्रायोरिटी 10 means I want this obja to have a highest priority. है कि नहीं लकी? यस, दैट इज द पॉइंट वी आई एम ट्राइंग टू टेल ना, है ना. यही तो मैं ट्राई कर रहा हूँ करने का, कि जो 10 है, यानी जो ओबीजे ए है ना, इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है. आर यू गेटिंग दिस गाइस? आपको इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है. अब ये हम किसको बता रहे होंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है? हम इसको किसको बता रहे होंगे? हम इसको शेड्यूलर को बता रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू टेल द शेड्यूलर, हे शेड्यूलर, you just have to give the highest priority to the obj a thread, because we have set the priority for this. हमने इसकी प्रायोरिटी जो है ना वो सेट करी है. क्या की है? 10. ओके, वी हैव सेट द प्रायोरिटी विच इज 10 फॉर द obj a which is a thread. बट सी, मैंने लास्ट टाइम आपको एक चीज बताया था, वी कैनॉट कंट्रोल द शेड्यूलर. हमें एक बात ध्यान में रखना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ. From this line, I have trying, hey, obj a, set this priority for this obj a to a 10 means highest priority I want. That is fine. But there is something when I'm saying, okay, set higher priority for this thread A. I'm calling it thread A. Okay. So मैं ये किसको बता रहा हूँ? Whom I am telling you this to do? I'm telling this to a scheduler. Okay. Okay, scheduler. This obj A is having a highest priority. Okay, give highest priority to it. Okay, fine. But we cannot control the scheduler. That is another point. What we are trying, we're trying to say, hey, hey scheduler, just give the priority highest to this a thread. But we cannot we cannot control we cannot control the scheduler. That is a very important thing. Okay, हम शेड्यूलर को कंट्रोल नहीं कर सकते.
ओके गाइस, दैट इज मेकिंग सेंस। सो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हम शेड्यूलर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और फिर इस लाइन से मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं शेड्यूलर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ तो क्या एक्चुअली मैं करने का ट्राई कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे हाईएस्ट प्रायोरिटी चाहिए, सो देयर आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल द शेड्यूल। दैट इज व्हाट अभी तक हमें समझ में आया है, कि अगर मैं बोल रहा हूँ शेड्यूलर को मुझे हाईएस्ट प्रायोरिटी चाहिए, आई हैव गिवन द 10, हाईएस्ट प्रायोरिटी 10 दिया है, तो यहाँ पे इस लाइन से अगर मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने तो एक तो बताया कि हम शेड्यूलर को बोल रहे हैं कि मुझे हाईएस्ट प्रायोरिटी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि हम शेड्यूलर को कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज अनदर पॉइंट। फाइन, देन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद दिस सेट प्रायोरिटी, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, the line we have written which is a set priority, we are not controlling the scheduler, we are suggesting a scheduler. Okay guys, we are only suggesting a scheduler. Hey scheduler, just give this thread A. Okay, we are just suggesting a schedule. Okay guys, हम शेड्यूलर को क्या कर रहे हैं, बस सजेस्ट कर रहे हैं। क्या सजेस्ट कर रहे हैं? हे, suggesting that just give the priority to the thread A, give the highest priority to the thread A. So what we are trying to do with set priority, we are not controlling it. We cannot control the schedule. We are just suggesting the scheduler. Okay, give this five, give the highest priority to this A thread, but it is not possible that scheduler will give you. Okay, guys, are you getting this? Yes. We are just giving, we are just telling, hey scheduler, just give the priority. We are just suggesting. अब क्योंकि हम शेड्यूल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, we're just suggesting, okay, give the priority to this thread A, but scheduler is there is it is not actually कि 100% आपको मिल ही जाएगा वो प्रायोरिटी। ऐसा क्यों है? क्यों हम बोलते हैं कि मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे चाहिए, और फिर हम उसको क्यों नहीं कर सकते? क्यों मुझे, अगर मैं शेड्यूल को बोल रहा हूँ कि मुझे हाईएस्ट प्रायोरिटी चाहिए, फिर मुझे वो क्यों नहीं मिल सकती? बिकॉज शेड्यूलर बहुत सारी चीजें देखता है, जब भी किसी थ्रेड को प्रायोरिटी देने का मौका आता है तो बहुत सारी चीजें वो देखता है। वन ऑफ द थिंग इज दैट, अगर मेरे पास ए थ्रेड है, अगर मेरे पास में बी थ्रेड है, इसको समझना अच्छे से, ठीक है? ये दोनों थ्रेड है मेरे पास, इन दोनों को ही मैं रन कर रहा हूँ। ओके, और मैं थ्रेड ए को बोल रहा हूँ कि इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दो। मैंने इसका सेट जो है ना, मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट किया है। मैंने बोला इसे आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है, मैंने सजेस्ट किया, मैंने कंट्रोल नहीं किया, दैट इज अनदर पॉइंट। मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटीज को सेट किया है, तो मैं बोलता हूँ इसको हमें एचपी मिल रहा होगा, हाई प्रायोरिटी हमें मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने सेट किया है। मिल रहा होगा वो नहीं बोल रहा हूँ। ओके गाइज, वी कैन नॉट कंट्रोल एचपी। एचपी मैंने इसको हाई प्रायोरिटी सेट किया। अब देखो, मैंने तो इसको हाई प्रायोरिटी सेट किया है, मैंने सेट किया है, नॉट कि वो मुझे मिल ही जाएगा, नॉट कि शेड्यूल उसको दे ही देगा। क्यों? जब हम एक पर्टिकुलर थ्रेड को हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट करते हैं तो वो मुझे क्यों नहीं मिलता? क्यों मुझे वो शेड्यूलर नहीं देता है? क्योंकि शेड्यूलर किसी भी थ्रेड को प्रायोरिटी देने से पहले कुछ चीजें चेक करता है। ओके, जैसे कि वन ऑफ द थिंग दैट शेड्यूलर लाइक लुक्स फॉर इज अ लीस्ट एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, लीस्ट एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, अब इसका मतलब क्या है लिस्ट एग्जीक्यूशन टाइम? सपोज एचपी है, इसको मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया है, बट इसका जो रनिंग टाइम है ना, जो एग्जीक्यूशन टाइम है, ओके गाइस, इसका जो मैंने क्या बोला है कि मैंने ए को हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट किया है, बट जो शेड्यूलर है वो क्या करता है, देखता है कि कौन सा थ्रेड कम से कम टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे इस ए को हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया है, बट ए जो है ना एट सेम टाइम बहुत इसका एग्जीक्यूशन जो टाइम है, मैं बोलता हूँ, ओके एक मिनट, ओके मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है ये बहुत ज़्यादा है। मैंने इसको सेट प्रायोरिटी हाई किया है, क्या किया है? सेट प्रायोरिटी हाई किया है। ओके, बट इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम, इंस्टेड ऑफ दैट, आई हैव अनदर थ्रेड विच इज बी। इसका जो, इसको मैंने कोई प्रायोरिटी सेट नहीं किया, बट इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है ना ये कम है, तो ऑफ कोर्स शेड्यूलर उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा जो कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है। समझ आया?
हाँ उसको हमने प्रायोरिटी दो नहीं दो कुछ उसका कोई लेना देना नहीं है। सो अनदर अदर थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट उसी थ्रेड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रहा होगा जो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो बहुत टाइम लेगा तो उसको वो कभी भी शेड्यूलर प्रायोरिटी में नहीं रखेगा, टाइम नहीं देगा कि नहीं आपको एग्जीक्यूट करना है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो थ्रेड विल गिव्स द प्रायोरिटी टू द सॉरी शेड्यूलर उसी को प्रायोरिटी ज़्यादा देगा जो जिसका जो है ना वो रनिंग टाइम लिस्ट है, एग्जीक्यूशन टाइम लिस्ट है। दैट मेक सेंस। तो हम यहाँ पे बस सजेस्ट कर रहे हैं कि हे गिव द हाईएस्ट प्रायोरिटी बट said we are saying we are just suggesting that, but if that thread is taking a longer execution time, that is not that scheduler will not give you the priority. Okay, इसीलिए हमें प्रायोरिटी नहीं मिलती, वी आर जस्ट सजेस्टिंग कि इसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दो। नाउ अगर मैं इस कोड को रन करूं, नाउ व्हाट आई हैव डिड हियर, मैंने ओबीजे ए को सेट प्रायोरिटी 10 दिया है। ओके, अब मैं नीचे जाता हूँ, अगेन आई विल गो डाउन और मैं ओबीजे बी को ना प्रायोरिटी क्या कितना दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ, लिस्ट प्रायोरिटी दे देता हूँ। ठीक है, ओबीजे बी इसका प्रायोरिटी में लिस्ट कर देता हूँ। ओके, ओबीजे बी और इसका प्रायोरिटी मैं लिस्ट यानी 1 कर देता हूँ और यहाँ पे बी कैपिटल होगा। ओके, अब देखो क्या होगा। अब मैंने क्या किया हुआ है, मेरा जो अब देखो दोनों दो लूप लगा रखे हैं मैंने, ठीक है, दो लूप लगा रखे हैं, एक तो ये वाला लगा रखा है, एक तो बी वाला लगा रखा है। अगर ए वाला ज्यादा चलता है तो आई विल इसका इंक्रीज टाइम बढ़ा देता हूँ मैं। ओके, आई हैव इंक्रीजेस द इटरेशन फॉर दिस और इसका मैंने कम रखा है। अगर मैं रन करता हूँ, क्योंकि मैंने बी के लिए तो लिस्ट प्रायोरिटी दिया है, बी तो लिस्ट प्रायोरिटी है। तो अगर मैं रन करूँ, ओके, if I will try to run and if you will see this here, okay, now okay, so now what you can see guys here in आपके स्क्रीन पे देखना, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग अप समथिंग, मैंने बहुत ज़्यादा रन किया है इसको। ओके, आई विल जस्ट गो अप। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यू आर ओनली गेटिंग ए, नीचे जाओगा ए, यू आर ओनली गेटिंग ए, यू आर नॉट गेटिंग बी, राइट, कैन यू सी ये, है ना, आपको ए मिल रहा है। आर यू गेटिंग दिस, देखो आपको बी मिल ही नहीं रहा, देखते कहाँ तक ए मिलता है, ए। देखो क्या हो गया, मुझे बी देखने को ही नहीं मिल रहा, आई एम नॉट गेटिंग अ बी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सी व्हाट आई हैव डिड हियर गाइस, इसका मैं जो है ना एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा ये कर देता हूँ। तो अभी दोनों जो रन मेथड है मेरे पास, जो एक ए वन के अंदर रन मेथड और बी वन के अंदर रन मेथड है, दे आर डूइंग द सेम थिंग, एक ही लाइन प्रिंट हो रही है। तो एक ही लाइन अगर दोनों में प्रिंट होगी तो दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम सेम ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसमें भी एक ही लाइन प्रिंट हो रहा है, इसमें भी एक ही लाइन प्रिंट हो रहा है। बट अगर ये रन मेथड है, इसके अंदर और 100 लाइन है, 200 लाइन, 300 लाइन होती है, तो दैट विल मेक डिफरेंस, क्योंकि एक बार रन होने के लिए उसको बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब दोनों के इसके अंदर क्या है, एक ही लाइन एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए इसके पास में भी एक लाइन है, इसके पास में भी एक लाइन। ओके, तो हमें डिफरेंस देखने को क्यों मिल रहा है, वी आर गेटिंग ओनली ए, क्योंकि ए को ही प्रायोरिटी मिल रही है, क्योंकि दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम सेम ही है। ओके, तो आपको दिखेगा कि ए को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, ओके, देन बी। तो देखो ए कितने बार प्रिंट हुआ है और बी कितने कम टाइम प्रिंट हुआ है, यू विल सी दिस थिंग। ओके, बट व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन, हमें किस पे फोकस करना है कि वी कैन ओनली सजेस्ट द शेड्यूलर, हे शेड्यूलर जस्ट गिव मी, जस्ट सेट द प्रायोरिटी, वी आर जस्ट सजेस्टिंग, ओके सेट द प्रायोरिटी फॉर दिस, इट इज नॉट कि वो आपको दे ही देगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी बताया है, हम उसको सजेस्ट करते होंगे। ओके, एंड आपको इसको इतना डीपली जाके या फिर बहुत ही हमें इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये पहले से फ्रेमवर्क, जब हम फ्रेमवर्क्स को एग्जीक्यूट करेंगे, व्हेन यू गो टू एग्जीक्यूट द फ्रेमवर्क, वर्क विद फ्रेमवर्क्स, तो फ्रेमवर्क्स अपने आप ही, और मैंने फ्रेमवर्क्स खुद से ही आपको थ्रेड्स बना के दे देते हैं, तो आपको उनके साथ में डील डायरेक्टली को बनाना नहीं पड़ता है थ्रेड, वी डोंट क्रिएट अ थ्रेड मोस्ट ऑफ, अगर आप फ्रेमवर्क यूज करोगे तो। बट वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट दिस कि हम थ्रेड्स के अंदर प्रायोरिटी क्या होता है एंड हाउ वी डू दिस थिंग, वी ओनली सजेस्टेड, दैट इज द थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट वी सजेस्टेड, वी कैंट control the schedule, because which thread will get the priority is depending on its execution time. समझ आ रहा है? Yes. ओके,
ओके गाइस, यहाँ तक किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है? लीना, लकी, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज? पूछो। No, sir. ये ये ऐसी चीज है जो कि हमें याद रखना है अबाउट द जस्ट सजेस्टिंग. You will rarely use these things. Priority, okay, maybe you will being asked about this priority concept, but okay, you should know about it. That will be very easy concept. कि हम बस प्रायोरिटी, हमें क्या क्या याद रखना है, हमें ध्यान रखना प्रायोरिटी गेट कैसे करना है, प्रायोरिटी सेट कैसे करना है. मिलेगी ही क्या वो डिपेंड नहीं होगा. ओके, दैट विल बी नॉट श्योर, वी कैन नॉट बी श्योर कि हमें मिल ही जाएगी. समझ में आ रहा है? हम्म. Yes. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो, व्हाट आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू डू वन थिंग हियर. ओके, अभी अभी तक जो हम कर रहे थे, व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग कि मैं दोनों की दोनों से थ्रेड साइमल्टेनियसली चला रहा था. वी आर रनिंग द थ्रेड साइमल्टेनियसली. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, व्हाट एक्चुअली वी वांटेड टू डू. मैं बताता हूँ कि अभी हमें क्या करना है. अभी अगर हम रन करेंगे कोड को, ओके, इफ यू विल रन दिस, व्हाट इज हैपनिंग. So you get A, then you get B, then you get A, then you get B. So this is our code is running. Okay, A B A B A B A B. अब देखो यहाँ पे कम क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको कम किया है. ओके, तो अगर मैं इसको और चलाऊँ ज़्यादा टाइम तो मुझे डिफरेंस देखने को मिलेगा. ठीक है, बट फॉर नाउ आई विल जस्ट रिमूव दिस प्रायोरिटी. अगर प्रायोरिटी मैं डिफॉल्ट रखता हूँ, क्योंकि अब दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम सेम ही है, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग दैट मच डिफरेंस. हमें सेम ही दिख रहा है, क्योंकि ए भी उतना ही आ रहा है, बी भी उतना आ रहा है, क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन टाइम सेम ही है. अगर हम इसको रन करें अभी, तो व्हाट यू विल गेट ए ए बी बी. ओके, ए बी इस तरह से आपको दिखेगा. मैंने कुछ लाइंस रिमूव नहीं किया. हाँ, मैं देख लेता हूँ. हाँ, ओके, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो स्टार्ट, इसको भी निकाल देता हूँ. ओके, और इसको भी मैं निकाल देता हूँ. तो हमारा कोड अभी क्लीन हो गया है, कुछ नहीं है. ठीक है, बैक टू नॉर्मल. our code looks pretty good now. Let's try to run this and see. Okay, what is happening. हमारा जो कोड है वो सीक्वेंस एट अ टाइम चल रहा है. पहले ए प्रिंट हो रहा है, फिर बी प्रिंट हो रहा है, फिर ए प्रिंट हो रहा है, फिर बी प्रिंट हो रहा है, फिर ए प्रिंट हो रहा है. तो इस तरह से चल रहा है. ओके, अगर मैं थोड़ा इसको बढ़ा दूं तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. लेट्स ट्राई टू इंक्रीज इट. ए और बी को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस देखने को मिले कि व्हाट एक्चुअली वी आर गेटिंग. ओके, पहले ए प्रिंट हो रहा है, फिर बी प्रिंट हो रहा है, फिर ए प्रिंट हो रहा है, फिर बी प्रिंट हो रहा है. ओके, क्योंकि हमें पता है कि थ्रेड्स किस तरह से चलते हैं, है ना. वी हैव सीन कि थ्रेड्स जो है वो क्या चलते. देखो अब ए आ गया, ए के फिर देखो यहाँ पे बी आ गया, तो यू कैन सी बी. ओके, फिर ऊपर बी आ गया, देखो नीचे अभी आपको ए दिख रहा है, सो हियर यू विल गेट ए. ओके, तो ए बी ऐसे ऐसे चलते रहते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू डू समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. अभी कैसे प्रिंट हो रहा है, हाय 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 प्रिंट हो रहा है, फिर हेलो, सॉरी नॉट हाय हेलो, ए बी 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 ऐसे प्रिंट हो रहा है. साइमल्टेनियस चल रहा है ना, क्योंकि वो थ्रेड है. अब मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट कि सबसे पहले तो ए प्रिंट हो जाए. ओके, आई एम ए प्रिंट हो जाए, फिर इसके बाद में आई एम बी प्रिंट हो जाए, फिर इसके बाद में फिर से आई एम ए प्रिंट हो जाए, फिर आई एम बी प्रिंट हो जाए. ऐसे ऐसा ऐसा प्रिंट चाहिए मुझे, यानी वन आफ्टर, एक बार ये प्रिंट होना चाहिए, एक बार ये प्रिंट होना चाहिए, एक बार ये प्रिंट होना चाहिए, एक बार ये प्रिंट होना चाहिए. दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज दैट वी कैन नॉट कंट्रोल द शेड्यूलर. ये तो हमने समझ लिया. अगर मुझे इस तरह का एग्जीक्यूशन चाहिए, इफ आई वांटेड टू एग्जीक्यूट समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे हम न्यू कंसेप्ट यूज करेंगे विच विल बी अ स्लीप. क्या? कंसेप्ट ऑफ स्लीप. तो कंसेप्ट ऑफ स्लीप क्या बोलते हैं, आप किसी भी थ्रेड को फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन रोक के रख सकते हो. आप उसको बोल सकते हो, हे आपको लगा 10 सेकेंड्स वेट करना है, आपको 30 सेकेंड्स वेट करना है, ऐसे आप टाइम बता सकते हो कि इतना आपको वेट करना है, फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो. वेट फॉर दैट देन स्टार्ट एग्जीक्यूशन. मीन्स अगर आप उसको वेट नहीं कराओगे, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्लीप, हमारा थ्रेड तो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है. जब यानी जितने भी हमने लूप लगाया, तो ए बी बी ए ऐसे प्रिंट होता रहेगा, चलता रहेगा. तो आप उसको एक पर्टिकुलर जगह पे स्लीप में डाल सकते हो. स्लीप का मतलब क्या है, उसको आप डिले कर सकते हो. और डिले का भी मतलब क्या है, आप उसको रोक सकते हो. क्या कर सकते हो, रोक सकते हो.
So with the help of thread sleep, with the help of sleep, we can stop a particular thread. Okay, we can stop. Hey, wait, maybe it is going like this, it is just going executing. We can say, okay, at particular time you can say, hey, wait, don't execute, sleep for a while. Sleep means just wait. And when you say wait, that thread will say, okay, I want you to wait, I have to wait as you have suggested me. You will tell me I have to wait here at this point, I have to wait, but kitna time. So you will mention in the milliseconds that, okay, wait for 10 seconds. Maybe you will provide the milliseconds कि आपको कितना milliseconds delay करवाना है. If you will write 10 milliseconds, okay, so that thread will wait for 10 milliseconds. So when you write 10, the point when this thread arrive at this point, which is where you are telling wait for 10 milliseconds, so it will automatically start countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. जैसे ही टाइम जो है वो उसका खत्म हो जाएगा, वो फिर से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा. समझ में आ रहा है? So with the help of wait or sleep, we can say, hey, wait for a while, then execute. Don't start execute. Okay, just wait. ठीक है? So for that we use the sleep. What we use? A sleep. So now what I want, um, I'm printing this line. Okay, I'm just printing this line. But after printing one line, guys, listen, guys. Okay, what I want to get what? High, not high, A, then B, then A, then B, then I'm just getting, I just want to execute something like this, है ना? A B A B A B A B. अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही A ने आई एम ए प्रिंट कर दिया, एक बार प्रिंट कर दिया, उसके बाद मैं उसको बोलूंगा वेट, डोंट एग्जीक्यूट again, wait for a while. So okay, so what I will do here, after printing this I am A, I will say, hey, just wait. Okay, so we have something which is thread dot sleep method. Okay, sleep. So you can see here, guys. Okay, sleep. So what actually sleep takes, it takes actually milliseconds, and you can see actually what it take. I will just go back, write it again, thread dot sleep. Okay, sleep, and it takes the milliseconds, and it the like the type of that millisecond will be long, तो हमें long provide करना पड़ता है. Okay, let's go. I will just write milliseconds, and suppose I am just suggesting, hey, wait for 10 milliseconds. Okay, means when you print this line, wait for 10 milliseconds, then start execution. Then again you have printed A, then again wait for 10 seconds, then start execution. Okay, now what is happening here, everything is fine. I'm just calling sleep method and pass the milliseconds. What will happen when this line will be executed was first time, so you will get I am A, then this line will execute and it will stop this thread. It will let the means it will cause the thread to sleep for a while for 10 seconds. Then after 10 seconds again the thread will start execution, then again it will start print A, then again it will sleep for 10 milliseconds. Okay, that is happening. Now what is the error you are getting? You are getting sleep in below this sleep, you are getting the error. And error is because this sleep is throwing some exceptions. If you can see this sleep, what it throws interrupted exception. So it throws an exception. Okay, that we have seen. It checked exception. Okay, so this sleep method throws interrupted execution. Not execution, interrupted exception. It is exception it throws. Interrupted exception. So what we have to do, we just have to surround this sleep with the try and catch. So of course you will get automatically auto suggestion. Okay, surround with try and catch. Do it. I have just clicked. Okay, I have just clicked on surround with try and catch. So automatically I can see thread dot sleep is in try. Then catch block interrupted exception. It is just catching that exception, and it is throwing new runtime exception. Okay, that is fine. You can just print it as well. Okay, here it is throwing. You can print E as well. No problem. Okay, so we are getting interrupted exception at this line, and it is a checked exception. That's why we have to surround it with try and catch. Now what will happen, guys? In
10 milliseconds. Okay, what will happen? So after we have this line will execute it first, then it will sleep for 10 milliseconds. Okay, then again this line will print, then again it will sleep. So after printing every line, it will sleep for a 10 milliseconds. Okay, so if I will run now, so what you will get, after it will print one line, it will go to the sleep. But now what is happening, what you can see, if I'll just tell you something. Okay, so see what happened, after it has printed A, so it is gone into the sleep. Okay, then B is printing, B is printing, B is printing, and then when time is over, the sleep time is over, then A is again coming back to the work. Okay, then A again come back to the work. So when you see A here, let's go, B is printing, B is printing, because we the thread A is being sleep for 10 milliseconds, but thread B is not, thread B is running, right? So thread B, you can see thread B is running, B is running, B is running. It is running for 10 milliseconds. See how fast our machine is. For 10 milliseconds, B is printing. See B, B, B. You will see only B. Why? Now you can see again. You will get again A. When A will print, again you will see B, B, B. You will see B for 10 milliseconds. So see how many times you are getting B. For 10 milliseconds, our machine is that much fast that you will get B, 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 B. See how fast it is that it is printing for 10 milliseconds. Okay, then again you will get A. ओके, देन अगेन यू आर गेटिंग ए. अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे उसी ए को प्रायोरिटी मिल रहा है, ए ए ए ए, इट इज प्रिंटिंग बट वी आर गेटिंग द प्रायोरिटी टू ए ओनली. ओके, ये वी कैन नॉट कंट्रोल इट, जैसे मैंने बताया आपको, ए प्रिंट हो रहा है, ए प्रिंट हो रहा है, ए प्रिंट हो रहा है. ऐसा नहीं कि वो स्लीप में नहीं जा रहा, ऐसा नहीं कि वो स्लीप में नहीं जा रहा, स्लीप में जा रहा है, बट वो ए को ही प्रायोरिटी दे रहा है, ए. सो दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग. ओके, अब आपको फिर से बी मिलना चालू हो जाएगा. आफ्टर यू विल गो डाउन, यू विल गेट बी. ओके, वी आर नॉट गेटिंग, but see what is the point, we cannot control it. Okay, now that much is fine, that okay, I'm calling A and I'm saying, hey A, after printing A, just go into the sleep for 10 milliseconds. Now I will do the same to the B as well. B के अंदर भी मैं क्या करता हूँ कि hey, if you just after printing this A, after printing B, just go into the sleep. Okay, I will write thread dot sleep, not set default code, something like this. Thread dot uh, sleep. Okay, let's call it sleep, and here again I will pass a 10. Again we have to surround it with try and catch, so because it is a checked exception. Okay, hover here, surround with try and catch. Okay, that's fine. Now let's see, are we getting, okay, what are we getting now? So you will see what actually you are getting. You are getting A, B, then A, B, then A, B, then A, B. Because what is happening, when A is executing, after that when A has printed one time, then it is the A has gone to the sleep, then B will print, then B again go to the sleep. Okay, so it is running alternate something like this. Can you see, guys? Hmm. A B A B A B A B A B. Can you see? हम्म. Yes. है ना, ऐसे चल रहा है. बट समटाइम, ओके, देखना दिख रहा है, ए बी, यू आर गेटिंग ए बी ए बी ए बी. सो यू कैन let the thread wait for a while. Okay, you will say, hey, just wait for a while, don't run, don't execute, wait. Okay, so that is how you can let the thread to sleep for a while. Maybe you will not get a more idea about the sleep, but I will just show you something that will uh, give you some insight about actually what I'm trying to say. Let's go into the Android to see, to say to see what actually the delay or what actually the sleep is doing. Okay, I will show you something that will be very interesting. Okay, maybe it will not make sense to you guys कि मैंने अपने यहाँ पे कोड क्या लिखा हुआ है. So don't focus on the code, and here is our application. Okay, I hope you can see it. Yeah, now this is the application I've been working on. Okay, so I will tell you something, I will show you something, not tell you. Okay, because telling will not work here. Okay, so
let's go into the splash, and I will just show you something which is related to the thread now. Okay. And where is our, okay, no, it is onboarding. Let's go over here, and I will show you something. Okay, so you can see the same thing which is delay. What is happening here? So delay means sleep, same thing. Delay का मतलब और sleep का मतलब same है कि wait करो. Okay, just wait. So what actually we are doing here, after this block executes, this launch, if it execute, first thing we are, what we are doing, we are setting the delay. Wait, don't go anywhere, wait for this much milliseconds. Okay, and after this milliseconds has over, ये टाइम जब हमारा ओवर हो जाएगा, फिर हमें नीचे की चीज करना है. फिर क्या करना है, हमें नीचे की चीज करना है. तो यहाँ पे मैंने एक डिले लगाया हुआ है कि वेट करो, डोंट गो, वेट. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद दिस, हमने बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करे होंगे. तो एप्स के अंदर हमें, हमारे पास में एक चीज होता है, जैसे एक स्प्लैश स्क्रीन आता है. आपको पता है स्प्लैश स्क्रीन आता है? Have you heard? Have you seen the splash screen? So what actually happened with the splash screen? एक कंपनी का लोगो आता है, या फिर उसका नाम आता है. किसी भी, अगर आप फ्लिपकार्ट यूज करोगे तो फ्लिपकार्ट में जब आप वो ऐप रन करते हो ना, एक एक स्क्रीन आता है जो कि थोड़ी देर तक रहता है, फिर चला जाता है कि नहीं? आपने देखा है वैसा स्क्रीन? यस गाइस, हैव यू सीन दैट स्क्रीन? दैट इज कॉल्ड एज अ स्प्लैश स्क्रीन. तो हम उसको किसी पर्टिकुलर टाइम तक दिखाते हैं. हम बोलते हैं कि इतना मिनट तक वो दिखना चाहिए, और वहां पे हम थ्रेड को यूज करते हैं कि इतना मिनट तक वेट करो, और फिर हम दूसरे आगे का काम कर रहे हो. मीन्स वी कैन कंट्रोल द फ्लो. हम एक थ्रेड को पर्टिकुलर जगह पे रोक के रख सकते हैं कि नहीं, अभी आपको इतना टाइम रोकना है, वेट फॉर दैट मच टाइम. ओके, दैट इज हाउ वी यूज द डिले. तो हम कभी भी मेन थ्रेड को नहीं रोकेंगे, हाँ, क्योंकि एक हमारा पास होता है मेन थ्रेड और एक होता है हेल्पर थ्रेड. अब मैं आपको मेन के बारे में बताता हूँ. अगर हम मेन थ्रेड ऐसा होता है जिसको अगर हमने रोक दिया ना, तो हमारा एप्लीकेशन है, हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा. तो उसको बिल्कुल रोकना नहीं है. हम इसको रोकते नहीं है, कोई भी हालत में उसको रोकते नहीं है. हाँ, जो हेल्पर थ्रेड होते हैं, जो बाकी की चीजें संभालते हैं, मेन का मतलब उसको नहीं रोकना है. उसको हम रोकेंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी. बट हमारे पास में एक होता है हेल्पर थ्रेड्स, तो उसको हम रोक सकते हैं, चला सकते हैं, रोक सकते हैं, उनके उसके बीच में हम कुछ भी चीजें कर सकते हैं. बट हम मेन को नहीं रोकते. मेन को अगर रोकेंगे ना, मेन भी एक थ्रेड होता है हमारे पास में, इसको हम बिल्कुल नहीं रोकते हैं. तो हम हेल्पर थ्रेड को किसी भी पॉइंट पर रोक सकते हैं, स्लीप, उसको स्लीप के अंदर लेके जा सकते हैं. कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर काम करना है, और उसको मुझे किसी पर्टिकुलर डिले के बाद में करना है, कि मुझे, मैं बोलता हूँ कि मुझे 10 सेकंड से बाद में करना है, तो 10 सेकंड तक हमारा वो काम नहीं होगा, एक थोड़ा वेट लग जाएगा उसके ऊपर. फिर 10 सेकंड हमारा ओवर हो जाएगा, फिर वो थ्रेड रिज्यूम हो जाएगा, और फिर हमारा काम होता रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे इट इज टेकिंग लॉन्गर देन, always take longer time to exit start. Okay, but what we are, I'm trying to tell you here, when we make project, we use all those things which we are going to, like, we are executing here. Okay, maybe I will, maybe if it's execute, I can show you, because Android is very heavy. It is very heavy. Okay, but with the thread, we can stop a particular thread at a particular point. स्टॉप करने का मतलब है उसको स्लीप में लेकर जा सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए. फिर जब वो उसका स्लीपिंग टाइम खत्म हो जाएगा, फिर वो रिज्यूम हो जाएगा, है ना? उसको स्लीप में लेकर जा सकते हैं, और उसको रिज्यूम मोड में ला सकते हैं. वो अपने आप आ जाएगा. अगर उसका टाइम खत्म हो गया, द थ्रेड विल ऑटोमेटिकली कम बैक टू द, अगेन कम बैक टू द वर्क. ओके, तो आफ्टर रनिंग दिस ऐप, व्हाट यू विल सी, आपको एक थोड़े टाइम के लिए एक चीज दिखेगा. थोड़े टाइम के लिए अगर ये रन हो जाता है, तो आपको एक स्प्लैश दिखेगा फॉर अ वाइल. देखना. ओके, सो आपको एक फॉर अ व्हाइल एक स्प्लैश दिखेगा. अभी वेट फॉर अ व्हाइल क्यों आ रहा है? इसंट यूआई इजंट रिस्पोंडिंग बिकॉज़, ओके, देखना, आपको फॉर अ व्हाइल एक स्क्रीन आएगा. आगे स्क्रीन अभी कुछ कुछ समय के लिए दिखेगा, और फिर कुछ आगे का काम हुआ. तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने कोई चीज दिखाई है. ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिखाना है. जैसे लॉन्च हो गया, तो मुझे वो पर्टिकुलर टाइम के लिए दिखाना है. कितने, 15 सेकंड, या फिर कितने भी मिली सेकंड दिखाना है. तो देखो, कुछ समय के लिए दिखेगा, और फिर चला जाएगा. ठीक है, तो कुछ समय के लिए मैं कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ. सो दैट इज वेयर द थ्रेड्स इज लाइक अ स्लीप और डिले कम्स इन द पिक्चर. ओके, सो दैट इज हाउ वी डू दिस थिंग्स. बट विद द हेल्प ऑफ स्लीप, हम किसी थ्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं फॉर अ. समझ आ रहा है? ओके गाइस. Yeah.
है ना। हमें यही देखना है कि हम पर्टिकुलर समय के लिए थ्रेड को रोक सकते हैं। अगर आप ये टाइम बहुत ज़्यादा दे दोगे ना, तो बहुत टाइम तक वेट करेगा ये। और अभी बी तो वेट नहीं करेगा, सॉरी, अगर मैं एक पर्टिकुलर इसमें इसको ज़्यादा टाइम तक रोक के रख सकता हूँ, ओके, अगर मैं इतना ज़्यादा टाइम इसको रोक के रखता हूँ, तो बी तो अपना काम करते रहेगा, बी थोड़ी रुकेगा, बी तो अपना काम करता रहेगा। इसी इसी तरह से हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को रोक के रख सकते हैं, बट बाकी के थ्रेड्स तो काम करते रहेंगे, बट वो नहीं करता रहेगा। देखो अभी बी प्रिंट होगा, एक बार देखो, एक बार ए प्रिंट हो गया, अब मैंने ए को बहुत टाइम तक वेट करके रखा है, बहुत टाइम तक, बहुत, अब देखो बी बी प्रिंट हो रहा है, ए प्रिंट ही नहीं हो रहा, यू कैन सी, क्योंकि मैंने बी को बहुत टाइम के लिए स्लीप में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो बी प्रिंट हुआ है, ए तो प्रिंट ही नहीं हुआ, क्योंकि ए को मैंने बहुत, एक बार वो प्रिंट हो गया, उसके बाद में मैंने देखो दैट मच टाइम मैंने इसको रोक के रखा है, स्लीप करके रखा है। अब ये तो स्लीप में चला जाएगा, बट बी तो मेरा चलता ही रहेगा, बी के अंदर तो 10 मिली सेकेंड्स ही है, तो स्लीप में ज़्यादा टाइम कौन जाएगा, ए जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है ना स्लीप के लिए, इसमें कम दिया है, तो ये कम स्लीप में जाएगा। सो दैट इज, विद हेल्प ऑफ दिस वी कैन control the threads, we can control it, we can set the delay for this कि इतना डिले वेट करो, फिर आगे काम करो, फिर वेट करो, so that we can do. So this is about thread, sleep and priority. आपको इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है गाइस, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज आस्क, कुछ समझ नहीं आया, हाँ बताइए, एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क रिगार्डिंग दिस, देखिए।